hey guys, welcome back to my YouTube channel. Let's crack NEET and I'm back with a new video. It's not about the study part. Actually आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं the strategy to crack NEET exam, right? Not topics related to study and all. आज थोड़ा सा अलग मैंने कंटेंट रखा है in order to help you all, to motivate you all. ठीक है. सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को नीट कैसे क्रैक करना है in the first attempt or whether you are a dropper. It's going to help you out, right? So you might be thinking, what's actually NEET? NEET is nothing but the National Eligibility Entrance Test. ये तो सब बच्चों को पता ही होगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म सबको पता है. इसका मतलब क्या है? देखो, पहले वो हुआ करता था PMT, दैट वाज प्री मेडिकल टेस्ट. वो होते थे स्टेट वाइज, जैसे HPMT हरियाणा का, KPMT कर्नाटका का, मतलब स्टेट वाइज हुआ करते थे, दिल्ली PMT इस टाइप से. ठीक है, लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस स्टेट वाइज चीज़ को हटाकर उन्होंने पूरा नेशनली एक ही एग्ज़ाम कर दिया पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स का. दैट इज़ नोन एज नीट. नेशनली होता है ये पेपर ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया में. तो मतलब आपको कम्पीट करना है हर बच्चे के साथ जो even a MBBS or a BDS seat. How they will be testing it? Via an entrance test. So what subjects will be coming in your entrance test? There will be 3 subjects: chemistry, biology and physics, right? These are the 3 subjects which you will have to learn in your 11th and 12th, and you have to fix them in your mind in order to crack your NEET exam and to get an MBBS or a BDS seat, right? Now why did I took this slide, and you can see it's written mathematics here because mathematics is very much required in the physics portion, right? You will need some or the other help in the physics part of the mathematics. The further videos I'll be making, I'll be telling you that where we are using the mathematics and all, right? Okay, then the question should be ki how many number of questions are there. So you can see biology consists of 90 questions, physics consists of 45 questions, and again chemistry consists of 45 questions. So you can see the maximum weightages of biology, which is of 2 parts, zoology and botany, right? Zoology is the study about humans and animals, and botany is the study about plants. So they have divided into 2. Generally the zoology comes of more questions are there in zoology part, because in order to crack the exam, what you are going to do after that is you are going to study in an MBBS college, and there you require the knowledge of the animal as well as the human part. So that's why they are testing more of the zoology and less of the botany. Yeah, it can be reversed any of the time. We don't know कि कब क्या हो जाए. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बायो ज़्यादा वेटेज के तो सिर्फ बायो पढ़नी है, नहीं, लेकिन हाँ बायो भी पढ़नी है. ठीक है, उसके बाद मार्किंग स्कीम ये सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि एक करेक्ट आंसर के +4 मार्क्स हैं और एक तो आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया उसमें से भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट? सो इट विल बी बेटर कि जो आता है सिर्फ उसी को करो. इसीलिए नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए व्हाट यू नीड इज़ प्रैक्टिस एज मेनी MCQs एज यू कैन, अटैम्प्ट द क्विजेस, राइट? ओके, सो सब्जेक्ट वाइज अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना है. आपने देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे बायो के बारे में. बायो में पता 90 क्वेश्चन, सो 90 × 4 360 मार्क्स की बायो हो जाती है. मतलब अगर आपके 340 या 320 प्लस भी आ जाते हैं अगर, सो यू कैन ईजिली बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन. वैसे तो एडमिशन क्राइटेरिया 50% होता है, मतलब 360 यू नीड टू गेट. सो अगर आप बायो भी स्ट्रॉन्ग कर लेते, यू आर वेल इनफ टू टेक एडमिशन इवन इनटू अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, राइट? सो इसलिए बायो तो पढ़नी ही पढ़नी है. बायो के अंदर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं. You can watch my videos. I'll start with the biology class 11th and 12th very soon. वहाँ मैं आपको बायो लर्न करवाऊँगी, आपको बताऊँगी कि इस पेज पे आपको ये पढ़ना है, इस तरह से स्टिकी नोट्स चिपकाने हैं, या इस तरह से इस पेज पे ये पॉइंट्स लिख लो, या यूँ आप नोट्स बनाइए. ठीक है, वहाँ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, लेकिन करना आप लोगों को खुद है. मैं याद करवा दूँगी, लेकिन नोट्स आप लोगों के खुद के हाथ से लिखे होने चाहिए, क्योंकि बाद में अल्टीमेटली आपके बाज़ार से ख़रीदे हुए नोट्स काम नहीं आएंगे. जो आपने खुद बनाए हैं वो आपको याद रहेंगे. ठीक है, एंड रिवाइज दम एज मच एज यू कैन. उसके बाद पॉइंट आता है कि रीड NCERT अगेन एंड अगेन, क्योंकि NCERT जितनी बार आप पढ़ोगे कुछ नया मिलेगा.
और इस साल 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 99% क्वेश्चन फॉर ऑफ NCERT ओनली इन द बायोलॉजी पार्ट। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड NCERT बुक और हर पेज पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लो जो आपको याद नहीं रहेंगे, मतलब आप जब भी उस चैप्टर को रिवाइज करोगे यू हैव अ लुक एट दैट पॉइंट। डायरी बनानी जिसमें आपके 11th और 12th के सारे फार्मूलाज होंगे। रादर देन मेकिंग एक फार्मूला डायरी आप 2 बना सकते हो। एक वो जो कि जनरल फार्मूला जो आप याद रख सकते हो, फॉर एग्जांपल हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv², ठीक है, और एक फार्मूला होता है ½ I⍵²। अब ½ mv² तो जनरली हमें याद रह जाता है, लेकिन I⍵² वाला भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वाले दूसरे फार्मूला की हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, इसको सिर्फ हम उस रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ लेते, दूसरे टाइम पे नहीं पढ़ते। ठीक है, 2 डायरीज बना लो, एक वो जिसमें रेगुलर फार्मूला जो आपने हर रोज़ रीड करने ताकि आपको पेपर तक वो याद हो जाए, दूसरी वो जो कि नॉर्मल है जिनको आप मंथली या वीकली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, फिर फिज़िक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जितना हो सके एक टॉपिक चूज़ करो पर डे, उसके 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व ऑब्वियसली मस्ट है, लास्ट 10 years और लास्ट 5 years यू नीड टू डू। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में काफ़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देखो, ऑर्गेनिक को चाहिए प्रैक्टिस, इनऑर्गेनिक को चाहिए आपकी गुड मेमोरी पावर, और फिज़िकल जो होती है वो इजी होती है, वो आप थोड़ी थोड़ी भी रोज करोगे इट विल बी कम्प्लीटेड। लेकिन ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊँगी स्ट्रैटेजी टू स्टडी इन द 7 months एंड हाउ यू कैन कम्प्लीट योर सिलेबस वंस टिल दिसंबर। ठीक है, सो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि केमिस्ट्री में आपको कौन से पार्ट को कैसे पढ़ना है, किस पार्ट को आपको किस महीने में कितना ख़त्म कर देना है। ठीक है, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करो क्योंकि उसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो आप अगर आप स्टार्ट कर दोगे, मान लो आप नेक्स्ट मंथ के हाफ तक भी उसको कंप्लीट कर देते हो, सो उसके बाद आप लोग उसको बाद में अच्छे से जितनी प्रैक्टिस हो सके दे सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, इनऑर्गेनिक ठीक है, उसके बाद आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एक स्टूडेंट के लिए टू क्रैक एनी ऑफ द एग्ज़ाम, बी इट नीट, बी इट JE, बी इट CA और एनी कैट पैट वट एवर एग्जाम्स आर देयर, द स्ट्रैटेजी इज़ नोट्स। वाई नोट्स एंड हाउ यू हैव टू मेक नोट्स, बिकॉज नोट्स ही वो चीज़ होंगी जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे अल्टीमेटली। योर नोट्स, नॉट दैट बाज़ार से ख़रीदे वाले नोट्स। ठीक है, सो नोट्स कैसे बनाने, हर चीज़ नहीं लिख डालनी जो बुक में, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपके पास बुक भी है, बुक से आप रीड कर सकते हो। नोट्स में वो चीज़ है जो आपको बिल्कुल फटाफट से पूरा चैप्टर रिवाइज करा दे 10 से 15 मिनट में। ठीक है, सो यू हैव टू राइट द जनरल हेडिंग्स, उसके बाद पिक्चर्स बना लीजिए बायोलॉजी में जिससे आपको ईजी होगा। उन नोट्स को यूज़ करो, रिवाइज करो जितना हो सके। बायो में तो रिवाइज करना है। फिज़िक्स में फार्मूला रिमेंबर करने के लिए फार्मूला डायरी इज़ मस्ट। ठीक है, फिर आप सोर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब वीडियोस देख ली किसी टीचर की जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनका आपको कंटेंट समझ आ जाता है, राइट। ओके, सो स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, छोटी छोटी डायरीज लो। और एक चीज़ और बताऊँ मैं, बायो के लिए प्लेन पेज वाला रजिस्टर लो जिसमें डायग्राम भी बना पाओ, और उसमें आपको कुछ ऐड करना तो अल्टीमेटली आप ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक नोट्स कि बायो में प्लेन पेज वाला रजिस्टर, केमिस्ट्री में अगेन ऑर्गेनिक के लिए द सेम वन। बाकी सिंपली आप ले सकते हो दूसरे पेजेस वाले। फिज़िक्स में डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन, टॉपिक ले लो कि आज मुझे इस टॉपिक को ऐसा कर दे रहे हैं कि बस कोई भी क्वेश्चन आ जाए आई विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। उसके बाद एक कोट दैट इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टमोरो इज़ डूइंग योर बेस्ट टुडे। कल जो आपका रिजल्ट आएगा नीट में वो किस चीज़ से डिसाइड होगा कि आपने इन 6 से 7 महीनों में कितनी मेहनत करी है, राइट। सो रादर देन योर टाइम, राइट। ओके, देन एवरी डे इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो ज़रूरी नहीं कि आप कल भी कुछ नहीं करोगे, नहीं। कल सुबह उठो अच्छे से फ्रेश माइंड से, जो अपना टॉपिक्स बनाओ आज मैंने ये करना और कर डालो। चाहे 10 घंटे मत पढ़ो, 2 या 3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। हर रोज़ कुछ ना कुछ करना है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद टुगेदर वी अचीव मोर, ये सबको पता ही होगा। सक्सेस के रोड पे कोई अकेला नहीं होता, हमेशा उस
बंदे या बंदी के साथ कोई ना कोई टीचर होगा ज़रूर जो कि उसको गाइड करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। फिर दिस इज़ ऑल्सो गुड, इमेजिन विद ऑल योर माइंड, बिलीव विद ऑल योर हार्ट एंड अचीव विद ऑल योर माइट। हैप्पी लाइफ कंसिस्ट ऑफ ट्रैंक्वालिटी ऑफ माइंड। इससे क्या मतलब हमें सीखना है कि सिर्फ स्टडी नहीं करनी, अपने माइंड को भी खुश रखना, क्योंकि हेल्दी बॉडी विल ओनली हैव अ हेल्दी माइंड, राइट। तो आपको माइंड हेल्दी चाहिए, उसके लिए आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। सो यू नीड टू वर्क आउट, राइट, इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। उससे आपका क्या होगा, माइंड भी फ्रेश होगा, सुबह जल्दी उठ के वॉक वगैरह करके आओगे, जो भी करोगे उसके बाद आके आपका मन करेगा कि आप पढ़ लेते हैं थोड़ी देर बैठ के, ठीक है। मेक टुडे रिडिकुलसली अमेजिंग बिकॉज टुडे विल डिसाइड योर टुमारो। ओके, देन revision is a key to success. First key to success is making notes. Second key to success is revision. Revise as much as you can, क्योंकि आप एक चीज़ को 3-4 बार पढ़ोगे उसका मतलब है कि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। जब तक आप उसको 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार रिवाइज़ नहीं करोगे, इट्स ज़ीरो, क्योंकि पेपर के टाइम तक आप सब भूल जाओगे। इसलिए रिवाइज एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग यार, हु इज स्टॉपिंग यू, राइट। Then you can see this doctor consoling the old lady and think of you when you will be doing the same, and what will be the hand, and she's so happy. Why? Because she's related to a medical profession, which gives, really I am telling you, it's a very noble profession. Maybe some people won't respect you, but जो रिस्पेक्ट आपको सोसाइटी में मिलेगी इस प्रोफेशन से, वो शायद ही किसी और प्रोफेशन में मिले। इसलिए थिंक अबाउट द डे व्हेन यू विल गेट योर MBBS सीट एंड व्हेन यू विल बी कॉल्ड अ डॉक्टर, राइट। ओके, सो दिस वाज ऑल विथ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आई विल बी कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोज़ की 3 to 4 मंथ्स में कैसे सिलेबस कंप्लीट करने, या क्या स्ट्रैटेजी, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। एंड या ऑब्वियसली लेक्चर्स आई विल बी कीप ऑन अपलोडिंग। फिज़िक्स के मैंने स्टार्ट कर ही रखे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से क्लास 12th का, और 9th में भी मैंने थोड़े थोड़े डाल रखे। धीरे धीरे उनको कंप्लीट करते हुए 10th और 11th की भी आई स्टार्ट पोस्टिंग, ठीक है। सो कीप काम एंड कैरी ऑन। ऑल द वेरी 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 बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड एनी हेल्प यू नीड, यू आर मोस्ट वेलकम। Okay, so thank you. That will be all for today. I hope I could motivate you a bit. And yes, please keep in mind that what you will do today will decide what you will get tomorrow. So rather than wasting your time on surfing or doing whatever you do, just give little time to studies. I'm not saying कि आज 14-15 घंटे पढ़ने बैठो, नहीं। At least 2-3 hours, 4-5 hours थोड़ा थोड़ा बैठो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से स्टार्ट करो, and then you'll see a vast change in yourself after 4 to 5 months. Okay, so see you in the next video very soon. Bye bye, take care, tata, jai hind.